Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing great. This will be a part third of analyzing Eternal Limited using Screener. So in the two parts, we have covered the basic profile of Eternal Limited. We have learned what are the business segments of Eternal Limited. We have analyzed key highlights of the Eternal Limited as well. Then we have analyzed price and PE ratio through their chart, and we have checked the pros and cons of Eternal Limited. After this, we have covered the peer comparison, quarterly results, profit and loss statements, cash flow, and balance sheet. Okay, so moving forward, today we will learn how to read annual reports of any company. So we will analyze the Eternal Limited through their annual report. Okay, for annual report, you have to click on this financial year 2025. When we will click this, हमारी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी. ओके, लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ द रिपोर्ट. या इट विल बी विजिबल टू एवरीवन. तो ये थोड़ा स्टार्टिंग पार्ट होता है. फर्स्ट वन बताता है थोड़ा रिपोर्ट के बारे में, विच इज़ जस्ट द बेसिक पार्ट. तो यहाँ से हमारी एनुअल रिपोर्ट स्टार्ट होती है. तो इनिशियली इन्होंने अपना मिशन बताया हुआ है इटर्नल का, विच इज़ पावरिंग इंडियाज चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स. देन इन्होंने अपने 4 बिजनेस सेगमेंट्स का विजन मेंशन करा हुआ है. तो देयर विजन फॉर जोमेटो इज़ बेटर फूड फॉर मोर पीपल. For Blinkit, instant commerce indistinguishable from magic. For District, world class going out experience in India. And for Hyperpure, powering kitchens that serve better. And for Feeding India, make India malnutrition free. Okay, so this is the vision of Eternal Limited. Then table of content में आपको basic मिल जाएगा कि क्या क्या describe करा गया है इस report में. For example, starting है introduction से then financial highlights, key business क्या है, operational and financial highlights, then ESG update, and then statutory report में then you will be able to find management discussion and analysis. After this, board report, then report on corporate governance, and at the last you will be able to find financial statements of Eternal Limited. Okay, मूविंग फॉरवर्ड स्टार्टिंग से रीड करते हैं. सो वी विल ट्राई टू कवर मेन पॉइंट्स ओनली, बिकॉज अगर पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. तो वी विल एनालाइज ओनली मेन पॉइंट्स. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. इन FY 2025 द कंपनी चेंज इट्स नेम जोमेटो लिमिटेड टू इटर्नल लिमिटेड. ओके, अर्लियर इटर्नल लिमिटेड को जोमेटो लिमिटेड के नाम से जानते थे, बट इन FY 2025 उन्होंने अपना नेम चेंज कर दिया टू इटर्नल लिमिटेड. The new name serves to more distinguish our different mobile apps brands from identity of the listed parent company. More importantly for us, the term eternal is a reflection of our team's mission to endure, evolve, empower, to build institutions that redefine the future, shape societies, and embody the promise of performance through constant reinvention. Then Eternal today comprises of key business है, उनके 4 business segments हैं, which is first is Zomato, which is related to food delivery. Then Blinkit is related to quick commerce, and District is going out of business, and Hyperpure is B2B supplies. तो इसको देखते हैं. फूड डिलीवरी का क्या है इनका, फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी बिजनेस इन इंडिया. इट वाज लॉन्च इन 2015 and it's right now offering its services in 800 plus cities. Then for quick commerce, aim is to provide quick delivery in 10 minutes of products across categories, which include fresh staples, electronics, beauty, general merchandise, festive needs, and plus plus plus. Okay, it was launched in 2021, and it was acquired in 2022. Okay, then footprint, Blinkit services in 100 plus cities. Then district business is related to going out, and it enables discovery and transactions across going out experiences, including dining out, movies, sports, and live events. Then it was launched in 2022, and it's right now offering 800 plus cities. Then for Hyperpure, it's a B2B, business to business suppliers. It provides services by supplying quality food, ingredients, and other products to restaurants and other B2B buyers. And it was launched in 2019, and it's offering its services in 8 plus cities. तो यहाँ पर आपको ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाइलाइट्स मेंशन करे गए हैं कि नेट ऑर्डर वैल्यू जो है B2C बिजनेस की एंड कंसोलिडेटेड एडजस्टेड रेवेन्यू grew a 52% and 59% year on year respectively, and consolidated adjusted EBITDA grew 3 times to 1079 crore. Okay,
दैट्स गुड। देन FY 2025 नॉन गैप मैट्रिक्स उन्होंने बताया है कि नेट ऑर्डर वैल्यू B2C बिजनेस की 52% ग्रो हुई है, एडजस्टेड रेवेन्यू इज़ 59% एंड एडजस्टेड एबिटा इज चेंज आया है 707 करोड़ का, वो जो अपवर्ड चेंज है, मतलब इंक्रीज हुआ है। ओके, देन FY 2025 गैप मैट्रिक्स में ये क्या मेंशन करा गया है कि रेवेन्यू 67% से इंक्रीज हुआ है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एबिटा का 595 करोड़, देन पैट इज 175 करोड़ का चेंज आया है। ओके, तो आप इसको रीड करिएगा। देन मेन फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखते हैं जो बिजनेस में मेंशन करी गई है कि जोमेटो नेट ऑर्डर वैल्यू इतना था, चेंज आया 20% ईयर ऑन ईयर, एडजस्टेड रेवेन्यू 21% एंड एडजस्टेड एबिटा इज 593 ईयर ऑन ईयर। देन ब्लिंकिट नेट ऑर्डर वैल्यू इज 113% से इंक्रीज हुआ है इन ईयर ऑन ईयर and adjusted revenue 126% and adjusted EBITDA is 92 year on year. Okay, then district का बोला है इन्होंने 156% year on year revenue net order value, then adjusted revenue is 186 year on year and adjusted EBITDA is negative है थोड़ा 32 year on year. Okay, then all these are B2C services, direct business to consumer, and talking about B2B जिसमें hyper pure other आते हैं, तो इनका इन्होंने ये मेंशन करा गया है कि 95% रेवेन्यू में चेंज आया है एंड एडजस्टेड एबिटा इज 42 ईयर ऑन ईयर। ओके, तो टोटल ऑल बिजनेस का मिलाकर इनका ये टोटल रेवेन्यू है एंड ये एबिटा एडजस्टेड एबिटा। ओके, देन फूड डिलीवरी से रिलेटेड उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का बताया हुआ है। देन की मैट्रिक्स मेंशन करी गई है कि नेट ऑर्डर वैल्यू इतनी है, इतना परसेंट इन चेंज आया है जो कि अपवर्ड चेंज है। देन ऑर्डर्स में नेट ऑर्डर वैल्यू ये है, एवरेज मंथली ट्रांजेक्शन कस्टमर्स ये हैं, एवरेज मंथली एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स 18% ग्रो हुआ है, एवरेज मंथली एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट पार्टनर्स 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए हैं। ओके, तो मेन पढ़ते हैं कि वी ऑल्सो रन अ मेंबरशिप प्रोग्राम कॉल्ड जोमेटो गोल्ड विच प्रोवाइड members with multiple benefits including free delivery on orders and exclusive offers subject to terms. As of March 2025, we had 12.1 million active gold members on our platform. Okay, then food rescue से क्या है इनका, minimizing food wastage by offering orders cancelled during transit to customers within a specified radius at a, तो आप एक बारी ये देखिए फूड रेस्क्यू इन्होंने अपना चलाया था कुछ प्रमोशन रिलेटेड। देन फूड ऑन ट्रेन, शेड्यूल्ड ऑर्डर्स, ग्रुप ऑर्डरिंग, जोमेटो फॉर एंटरप्राइजेज, ZFE, तो एक बारी आप इसको रीड करिएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू क्विक कॉमर्स से रिलेटेड जो भी मेंशन करी गई है कि मैट्रिक्स इनकी वो ये हैं, एक बार इनको गो थ्रू करना है। देन ब्लिंकिट सारे चीज़ें ऑफर करता है आपको, ये सारे बता रखे हैं। गोइंग आउट में डाइनिंग आउट, स्पोर्ट्स, मूवीज़, इवेंट्स, ये सारे मेंशन करे गए हैं, उसका की मैट्रिक्स है ये देखना है। ये गोइंग आउट हाइलाइट्स है। देन B2B हाइपर प्योर वाले से रिलेटेड B2B सप्लाईज है, उसका मॉडल बताया हुआ है कि हाइपर प्योर इज अवर B2B सप्लाईज बिजनेस ऑफरिंग क्वालिटी फूड इंग्रेडिएंट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू रेस्टोरेंट्स एंड अदर B2B बायर्स एंड सेल्स ऑफ the non-restaurant business comprises B2B sales of mainly fresh foods and staples to the seller on the Blinkit marketplace. Okay, तो आपको एक बार ये भी रीड करना है। आफ्टर दिस हम अपने FY वी विल कम टू FY 2025 ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल हाइलाइट्स पर। तो ओवरऑल कंपनी का प्रोफाइल देखते हैं कि नेट ऑर्डर वैल्यू B2C बिजनेस में FY 2023 में था 27,735, then in 2024 it is 40,562, which shows the change of 46% year on year. Then for FY 2025 it's 52% year on year and right now it's 61,852 net order value. Then adjusted revenue है increasing trend में है। okay, पहले 56 था FY 2024 में, देन इन FY 2025 इट्स 59% ईयर ऑन ईयर। ओके, आप ये सब एक बारी चेक कर लेना, इसको रीड करना ब्रीफ में। देन कंसोलिडेटेड एडजस्टेड रेवेन्यू ग्रो हुआ है 3 टाइम्स इनका। ये एडजस्टेड एबिटा है which was negative in FY 2023 and right now in FY 2024 and 2025 increase हुआ है। PAT also increased in FY 2024 and both FY 2025। ओके, पैट भी इंक्रीज हुआ है, EBITDA भी इंक्रीज हुआ है, कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। इसको देखते हैं, कंसोलिडेटेड कैश बैलेंस इंक्रीज टू INR 18,824 करोड़ एज ऑफ March 2025 and on account of increase in consolidated adjusted EBITDA,
net proceeds of INR 8,446 crore from our qualified institutional placements in November 2024. Then increase in treasury income. So these are the reasons for increase in cash flow, cash balance. So moving forward, food delivery में इनका ये year 20% year on year net order value growth was in line with our long term growth outlook. Okay. Then we will look forward to next point. The restaurant and delivery partner base grow 20% year on year and 18% respectively. Okay, so in a growth phase, company is in a growth phase. Adjusted revenue grew at a similar pace as net order value. Okay. Adjusted EBITDA अभी हमने देखा था increasing phase में. Quick commerce का भी it's higher than the previous year. Then moving forward, store network, supply chain से related, store network more than double to 1301 stores across 100 plus cities. तो ये capex बोल सकते हैं हम, काफ़ी increase हुआ है. 526 FY 2024 में था and FY 2025 में 1301. एंड सिटीज़ से जो पार्टनरशिप है कि इतने इतने सिटीज़ में वो ऑफर कर रहे हैं. इट वाज 26 ओनली इन मार्च 2024 एंड इट्स नाउ 100 प्लस विच इज़ फॉर मार्च 2025. ओके, ग्रेट एफर्ट्स. देन रेवेन्यू ग्रो फास्टर देन नेट ऑर्डर वैल्यू. रेवेन्यू ज़्यादा हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं. रेवेन्यू ग्रोज 126% ईयर ऑन ईयर to Indian rupees 5,206 crore in FY 2025, faster than 113 year on year net order value growth. Okay, तो revenue ज़्यादा पेस पे ज़्यादा फास्टर ग्रो हो रहा है. देन ये हमारे रेवेन्यू है एंड परसेंटेज ऑफ एज नेट ऑर्डर वैल्यू. ओके, एडजस्टेड एबिटा इम्प्रूव्ड हुआ है. द एडजस्टेड एबिटा लॉसेज इन FY 2025 वर लार्जली ड्रिवन बाय ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स. ओके, तो जो एबिटा है हमारा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिशिएशन, तो वो डिक्रीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. तो बिजनेस इज़ इन अ ग्रोइंग फेज, तो अभी वो केपेक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन अर्निंग्स. तो दैट्स वाई इनकी अर्निंग्स भी नेगेटिव में गई है क्योंकि ग्रोथ एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है. इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस करा है कंपनी ने. Accelerated store and warehouse network expansion led to high underutilized network capacity during the year. तो स्टोर और वेयर हाउस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने पर कंपनी फोकस कर रही है. ओके, दैट्स गुड थिंग. देन गोइंग आउट बिजनेस से रिलेटेड ये दे रखे हैं नेट ऑर्डर वैल्यू एंड रेवेन्यू कितना है इनका. बोथ आर इन पॉजिटिव फेज. एडजस्टेड एबिटा मूविंग फॉरवर्ड टू B2B हायर हाइपर प्योर ये देखेंगे. So EBITDA is negative and revenue is increasing for Hyperpure as well. Then yeah, here we will look the FY 2025 operational and financial highlight summary. ये tabular form में दिया हुआ है. फूड डिलीवरी से इतना था लास्ट ईयर इन 2023, सॉरी इट वाज इन फॉर FY 2023 एंड फॉर FY 2024 इट इंक्रीज. देन फॉर FY 2025 इट ऑल्सो इंक्रीज. देन क्विक कॉमर्स में भी इंक्रीज हुआ है काफ़ी. क्विक कॉमर्स का रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज हुआ है एज़ कम्पेयर टू बाकी अदर बिजनेस सेगमेंट से. गोइंग आउट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज. हाइपर प्योर भी इंक्रीज हुआ है, ट्वाइस ही इंक्रीज हो गया है वो. देन ईयर ऑन ईयर चेंज हुआ है. 57% इट वाज फॉर FY 2023, फॉर FY 2024 56% एंड फॉर FY 2025 इज़ 59%. ओके, सेम एज विद एडजस्टेड एबिटा आप देखिएगा इट इज़ नेगेटिव फॉर क्विक कॉमर्स, गोइंग आउट, B2B सप्लाईज एंड अदर्स. इट्स ओनली इन पॉजिटिव फॉर फूड डिलीवरी. ओके, so they are working on other business segments. देन फाइनेंशियल मैट्रिक्स, क्रॉस ऑर्डर वैल्यू, नेट ऑर्डर वैल्यू ये इनकी यहाँ दी हुई है. एडजस्टेड रेवेन्यू है, तो आप एक बार इनको चेक करिएगा, इनको एनालाइज करना है. आफ्टर दिस वी विल मूव फॉरवर्ड टू, सो वी विल स्किप ऑल दिस पार्ट. ये हमें बता रखा है, आप एक बार पहले इनको रीड कर लेना तो आपका और मोर क्लियर हो जाएगा रादर देन एनालाइजिंग द टेबल. इफ़ यू विल रीड ऑल दीज सो दिस विल बी मोर क्लियर टू यू. ओके, देन ESG अपडेट्स जो कंपनी ने मेंशन करे हैं. FY 2025 ESG highlights: reduce last mile delivery emissions on a per kilometer basis by 10.5% from FY 2022 to FY 2025. Okay, voluntarily recycled 45,000 MT of plastic waste. Okay, processed insurance payouts with 70 plus crore rupees. Then served 200 plus million meals till date to underprivileged children through
Feeding India and Zomato give back. So that's the part of their ESG updates. Okay, ESG की ratings है. Then sustainability goals and themes. तो कंपनी ने फोकस करें कि क्लाइमेट कॉन्शियस डिलीवरीज होनी चाहिए, वेस्ट फ्री वर्ल्ड, ज़ीरो हंगर, हेल्थ सेफ्टी एंड वेल बींग फॉर ऑल. ओके, आप ये सब देखिए. डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, कस्टमर सेंट्रिसिटी, गवर्नेंस. तो एक बार इनको गो थ्रू कर लेना है. क्लाइमेट कॉन्शियस डिलीवरीज अपना थोड़ा ESG से रिलेटेड उन्होंने ब्रीफ करा हुआ है ये. आप इसको रीड कर सकते हैं इफ़ यू वांट. देन मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट important thing, corporate information. If you want to read this, the main board of directors, chairman and independent director Mr. Kaushik Datta, executive director Dipendra Goyal, then non-executive director Sanjeev Bikhchandani, and you can read all these. Independent director Ms. Sutapa Banerjee, independent director Ms. Namita Gupta, and Aparna Popat independent director. Okay, आप ये सब देख सकते हो इनकी. Then management discussion and analysis, ये main part है that we have covered in the previous video as well, कि कैसे read करते हैं MD analysis. तो आप ये देख सकते हो. सबसे पहले consolidated profit and loss mention करा गया है. इन्होंने compare कर रखा है with the previous year and for the current year. आप इसको देखिए कि profit after tax PAT हमारा increase हुआ है. It was in FY 2024 351 and for FY 2025 it's 527. देन ये सब एनालाइज करिए एक बार रीड करके. देन एक्सपेंस को ब्रीफ करा गया है कि कहाँ पर कंपनी ने एक्सपेंस करा है. स्क्रीनर पे तो हमें ओवरऑल मिला था, बट यहाँ पर आपको ब्रीफ में बताया गया है कि कहाँ पर कंपनी ने एक्सपेंस करा है, क्यों. अगर कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है तो वो क्यों हुआ है, तो वो यहाँ पर मिलेगा आपको समझने के लिए. तो आप एक बार इसको ब्रीफली पढ़ लेना है. देन मूविंग फॉरवर्ड टू बोर्ड्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बोर्ड ने क्या बोला है कि टोटल हमारी इतनी इनकम है, एक्सपेंसेस, आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम्स. देन मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, CSR से रिलेटेड पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट कि द CSR पॉलिसी रिफ्लेक्ट इट्स कमिटमेंट टू सोशल वेलफेयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट आउटलाइन द गाइडलाइंस guiding principles, responsibilities, and structured approach for implementing meaningful initiatives that possibly impact communities. तो एक बार आप देख सकते हो कि कंपनी ने CSR से रिलेटेड क्या क्या काम करे हैं. रिस्क पढ़िए कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है. Let's read this. The board has constituted a risk management committee to design, implement, and monitor the company's risk management strategies. The RMC Risk Management Committee ensure that these procedures are effective and continuously reviewed करे जाने चाहिए. And इनका क्या है कि ये आप यहाँ से रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी पढ़ सकते हो. कस्टमर एक्सपीरियंस गवर्नेंस पे फोकस करा गया है. पीपल मैनेजमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं ये आगे. देन बिजनेस स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, आप इसको भी पढ़िए. ओवरऑल आपको पढ़ना पड़ेगा, लाइक इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंपनी इन मोर डीपर वे, देन यू हैव टू रीड ऑल दीज थिंग्स. HR से रिलेटेड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड देयर एडिक्वेसी, ये रीड करिए. देन मूविंग फॉरवर्ड टू मेन चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, विच इज़ yes, if you want to check, like if you are performing valuation or you are preparing equity research report or any report of analyzing this company, so you can incorporate the remuneration that board of directors are getting and कितना change आया है उसमें, ये सब आप देखिए. And if you want to incorporate these points in your report or in your academic research report, then you can mention these points as well. Then बिजनेस CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्ट इन्होंने मेंशन करी गई है कि क्या क्या करा इन्होंने. देन मूविंग फॉरवर्ड टू yes, you can incorporate these points as well. Details of performance and career development reviews of employees and workers, कितने मेल फीमेल हैं. If you want to add like a pie chart of male and female and other category of employees in the eternal limit, तो उसका भी आप एक अच्छे से पाई चार्ट दिखा सकते हो जेंडर इक्वालिटी का पॉइंट शो करके अपनी रिपोर्ट में. देन ओवरऑल आपको ये रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी एट मूविंग फॉरवर्ड टू द एंड, जहाँ पर फाइनेंशियल्स दिए गए हैं हम वहाँ चलते हैं. वहाँ पर कंपनी को एनालाइज करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है इनका अदर इंटेंजिबल एसेट्स एंड गुडविल से रिलेटेड. ओके, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़,
सो यस, अब हम बैलेंस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी की कि क्या क्या मेंशन करा है इन्होंने। पहले एसेट सेक्शन में है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, which is 965, and earlier in 2024 it was 287. Then capital work in progress, rights of use assets, goodwill increased to a 1000, approximately 1500 something. Then investment constant है, majorly constant है than previous year. Other financial assets increase हुए हैं. Then total non current assets का यहाँ पर है. इन्वेंट्रीज देखिए, करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई है देन प्रीवियस ईयर. इन्वेस्टमेंट्स इधर करंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुए हैं. Trade receivable has also increased than cash and cash equivalent. Okay, then yes, approximately all things are like well okay in the balance sheet. Then this is equity part. Moving to liabilities, financial liabilities में लीज पर ज़्यादा एक्सपेंस करा है कंपनी ने देन प्रीवियस ईयर, दैट वी हैव एनालाइज थ्रू स्क्रीनर एज वेल. deferred tax liabilities 212. ओके, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ देखेंगे यहाँ पर ओवरऑल. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, दैट वी हैव एनालाइज थ्रू स्क्रीनर एज वेल. यहाँ पर आप देख सकते हो मेजरली सेम थिंग्स है. तो इसको पढ़िए, एनालाइज करिए. एमडी अच्छे से पढ़ लेना है आपको मोर ब्रीफली, जिससे क्लियर हो जाए कि क्या कहना चाह रहा है, कि ग्रोथ क्या लेनी है कंपनी का, क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है और पर्सपेक्टिव क्या है आगे फ्यूचर का लेकर. So that's all in this video, guys. I hope you like this video. If you have any queries, any suggestions, you can drop down in the comment section. And in the next part, we will read the con call of Eternal Limited as well. Okay. So thanks for watching.